Dear kids, from morning to evening or night, from night to morning, we use a lot of things in our daily life. बहुत सारे materials को, things को we use. So these materials which we need in our life, in our daily life, we use in our life, those materials, those things are actually known as resources. Resources. So these resources are used in our daily life. They are a lot of. We can't list them in a single list. So if I talk about this pen, because I use this some point of time, so this is a resource. Like the air, we breathe in, breathe out, that air, that is also a resource. So there are a lot of resources. You can list, you can name a few, like like the water, like the soil, like the camera. I'm shooting the video for you. That camera is also a resource. So now we talk about this pen. So when we talk about this pen, actually this is made up of two main things, two constituents. One is this plastic case and other one this is the metallic part. So these two parts are there. Can you tell me the plastic part which is having this color, blue color? So can you tell me that this plastic part has been obtained from where? कहाँ से मिला होगा? Yes, you can write. You can say because that is made from the chemicals. It is a synthetic material. It is a man-made material. It is an artificial material. Very good. And what about this metal part? Yes, we already talked about that the metals are minerals. From minerals they are extracted. So that is a natural part. Okay. If we talk about the air, we cannot synthesize the air in the laboratory. That is natural. We obtain that air from nature. So now you are getting some idea that these resources which we use in our daily life from morning to night, night to morning, different people use different resources, and some are basic resources which are used by everyone. So pen, the camera, the air, water, light, sunlight, all these resources actually can be classified into two classes or two categories. So those two categories are, first is natural and the second one is man-made, or you can say artificial, or you can say synthetic category. Okay. Now you can see the table here. That table is having two columns. The first one is the left one, that is having the natural articles, and the right one, the right hand side the column, it is having the artificial materials in your surroundings. Actually some are given in that table, but you can write a lot of, you can write many different more materials into that list. The natural list also you can elongate it too much. You can write a lot of names in that. Also in the same matter, in the same manner, the right hand side, the artificial articles, you can write a lot of more in that list. So you can see that the natural articles, the natural resources, those are air, water, sunlight, soil. And artificial one, they are having plastic, like table. So the artificial which are man-made and the natural are from the nature. So these resources are natural and artificial. These resources are of two types. So these natural resources we will talk about. So what are the classifications? वो कितने तरह के होते हैं? क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स. सो टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात करेंगे. तो वो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हम करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का? ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी. वो अवेलेबल कितने हैं, क्वांटिटी उनकी कितनी है, उनके बेसिस पर दे आर ऑफ टू टाइप्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी इन द नेचर दे आर ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट वन inexhaustible and the second one exhaustible. The word special is for you exhaust. Pronunciation आप समझ लीजिए, inexhaustible. So inexhaustible में in का मतलब है not, exhaust का मतलब है finish, खत्म हो जाना,
और जो बी एल है वो बना है एबल से। तो जो कि किसके लिए एबल है? एबल है फिनिश होने में नहीं, वो कभी भी फिनिश नहीं होगा। ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू इट कैंट बी फिनिश्ड। और दूसरा वाला देखिए एग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्ट एबल, जो एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा अगर उसका कंटिन्यूसली ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा यूज किया जाएगा, इट विल बी एग्जॉस्टेड। सो इनएग्जॉस्टेबल की बात करें पहले, जो कि खत्म ही नहीं होंगे ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिले हैं। वाओ सर, फर्स्ट अनलिमिटेड इन क्वांटिटी, खत्म क्यों नहीं होंगे? बिकॉज दे आर अनलिमिटेड इन देयर क्वांटिटी, कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड। और अनलिमिटेड है इसलिए कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू उनको एग्जॉस्ट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल देखिए, सनलाइट हम कभी खत्म नहीं कर सकते, एयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा, तो इनको हम कभी खत्म नहीं कर सकते। दीज आर इनएग्जॉस्टेबल। सेकंड, एग्जॉस्टेबल की बात करें, लिमिटेड इन क्वांटिटी, उनकी क्वांटिटी है वो लिमिटेड है। कैन बी एग्जॉस्टेड, इसीलिए वो क्वांटिटी में लिमिटेड है, सीमित मात्रा में है, सो दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। अगर ह्यूमन बींग्स एक्टिविटीज के थ्रू अपने उनको चाहेंगे यूज करना कंटिन्यूसली, तो वो एक वक्त आएगा कि खत्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, फॉरेस्ट, अगर इंसान चाहे तो सारे फॉरेस्ट को काट सकता, खत्म हो जाएंगे फॉरेस्ट, देयर विल बी नो मोर फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स जो प्लांट्स फॉरेस्ट में है वो एनिमल्स। मिनरल्स की बात करें, जो माइंस करके माइनिंग करके निकाले जाते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनकी बात करें तो ये सब के सब क्या है? लिमिटेड है क्वांटिटी में। सो दीज आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो हम इन तीनों की बात करेंगे इस चैप्टर में, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये तीनों जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं विच आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, एग्जॉस्टिबल है, उनके बारे में बात करेंगे। तो इन तीनों को एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज फॉसिल फ्यूल्स। Fossil fuels, possibly in geography you have studied about these fossils, so now we will talk about that a little bit. Fossil and fuel, there are two words, तो इनको ये फ्यूल्स हैं, कौन से वाले? फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो क्यों बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स? तो दोनों वर्ड्स को समझते हैं फिर आप समझ जाएंगे। पहला वर्ड है फॉसिल्स। सो द वर्ड फॉसिल मीन्स दैट रिमेन्स, डेड आफ्टर डेथ, द रिमेन्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ के बाद में द रिमेनिंग पार्ट, जो बचता है उनका पार्ट, आर नोन एज फॉसिल्स। जो कई सालों बाद में नेचुरली जिनकी डेथ होती है, उसके बाद में उनका जो डेड बॉडी का जो पार्ट बच जाता है आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, देन दैट पार्ट इज नोन एज फॉसिल्स। एंड द सेकंड थिंग, फ्यूल्स, द सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस दैट गिव हीट, जो हीट देते हैं, गर्मी देते हैं, ऑन बर्निंग, बर्न होने पर, आर नोन एज फ्यूल्स। तो ये तीनों की तीनों क्या है? डेड ऑर्गेनिज्म के सॉरी हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स। और दूसरी बात, इनको गर्म करने पर वो हीट भी देते हैं। वाह, इसका मतलब ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। सो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट दीज थ्री नेचुरल एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। To understand the exhaustible type of resources, we will conduct an activity. In this activity, we will keep a lot of sweets, eatables, chocolates, toffees in some containers, and we will call some people in groups. In the first group, there is only one person. In the second group, there are 3 persons. In the third group, there are 6 people. And in the last group, in the fourth group, there are total 8 people. So total 4 groups we are calling for the activity. Why we are doing that? In the first, only one person is there. In the second, 3, and then 6, and then 8. Actually, these groups are for the indication of the generations. मतलब एक पीढ़ी के बाद में next पीढ़ी में, in the next generation, the number actually increases of the people. तो नंबर बढ़ता है, तो इस तरह हमने जनरेशंस को इंडिकेट करने के लिए हमने लिया है यहाँ पर नंबर ऑफ द पीपल को बढ़ाते हुए। तो 4 ग्रुप्स हो गए, मतलब 4 जनरेशंस। तो यहाँ पर हम एक्चुअली चॉकलेट्स की बात कर रहे हैं, टॉफीज की बात कर रहे हैं। तो वी विल कॉल 1 by 1। फर्स्ट बंदा आए, द फर्स्ट ग्रुप आए, तो फर्स्ट ग्रुप में एक ही बंदा है, सो ही विल कम एंड ही विल कलेक्ट द ईटेबल्स, ही विल कंज्यूम। इन द सेम फैशन, द सेकंड ग्रुप विच इज हैविंग 3 persons, द थर्ड ग्रुप which is having 6 persons, and the last group which is having 8 persons, they will come
they will collect, they will consume the chocolates, the eatables. What will be the result? Result क्या होगा? Will everybody, फिर in all the generations, हम यहाँ पे ग्रुप्स की बात करें कि चारों ग्रुप्स में सभी को क्या चॉकलेट्स मिल जाएंगी, ईटेबल्स मिल जाएंगे? क्या कोई ऐसा भी ग्रुप रहा होगा, रहेगा, विच विल नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ स्वीट और चॉकलेट्स और टॉफीज और ईटेबल्स? इसके पीछे हो सकता है दैट सम ग्रुप, द लास्ट ग्रुप और द थर्ड ग्रुप इज नॉट हैविंग एनीथिंग टू ईट, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है. क्यों? उसके पहले वाले फर्स्ट और सेकंड ग्रुप ने, या फर्स्ट ग्रुप नहीं हो सकता है, सारा उठा के खा लिया हो, बिकॉज ही वाज और दैट ग्रुप वाज ग्रीडी. तो यही बात लागू होती है. द सेम थिंग इंप्लाइज विद द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज, these resources are actually exhaustible, limited in quantity, and the people, generations after generations, the number is growing. Actually नंबर कम है रिसोर्सेज का, बट यूज करने वाले कंज्यूमर्स का, कस्टमर्स का, यूज करने वाले उपभोक्ताओं का, द नंबर इज गेटिंग लार्जर एंड लार्जर. सो व्हाट इज हैपनिंग? if the pattern of consumption, अगर कंजप्शन का पैटर्न, यूज करने का जो तरीका है, इफ दैट इज ऑफ ग्रीडी टाइप, लालची किस्म के हैं लोग, अगर वो सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन ही, अगर इफ दे आर ग्रीडी, इफ दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन, तो क्या होगा? दे विल नॉट बी हैविंग एनीथिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. अगली पीढ़ी के लिए कुछ भी छोड़ेंगे नहीं. अगर इफ दे विल बी कंसर्न्ड, अगर वे चिंतित होंगे फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, देन डेफिनेटली दे विल लीव समथिंग फॉर द next generations. So here, what is the important thing? Here the important thing is that exhaustible resources are definitely limited in quantity. They will exhaust at certain point of time, after 100 years, after 200 years, but they will exhaust. Second thing, this means that we have to use them in such a manner that we will use for our necessity, but we will preserve them for the next generation also in such a manner. मतलब हमें greedy नहीं होना है, we have to be concerned. So this activity shows about the limited quantity of the exhaustible resources. So in this chapter we will talk about the three natural resources which are exhaustible, which are limited in quantity. So the first one is coal, C-O-A-L, coal. So how this coal was formed? Actually, when we talk about the coal, तो actually coal, it is mined from the soil, mined from the earth. Earth से इसको खोद कर निकाला जाता है. तो खोद कर निकाला था, इसका मतलब it was there already. तो ये ऑलरेडी कैसे बना? तो इसकी स्टोरी के बारे में वी विल टॉक अबाउट राइट नाउ. द स्टोरी ऑफ कोल, कोयले की कहानी. तो कोयले की कहानी, इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी अर्ली इन द लाइफ ऑफ द अर्थ. अर्थ की लाइफ में अराउंड 300 मिलियन ईयर्स अगो. 1 million is equal to 10 lakhs. So you can now understand 300 million years ago, what was there on the surface of the earth? There were a lot of plants, means you can say dense forest. In which areas? Dense forest थे कौन से एरिया में थे? In the low lying wetland areas. Low lying का मतलब जो नीचे की तरफ है, जिनका जो लेवल है वो बाकी सरफेस की जो दूसरी टेक्सचर्स हैं उनसे थोड़ा नीचे की तरफ है. और दूसरी बात, वेटलैंड एरियाज. वेटलैंड एरियाज ऐसे वाले एरियाज होते हैं विच आर अराउंड द वाटर बॉडीज. Now you can understand the water bodies, that it may be a river, it may be a lake, it may be the sea, it may be the ocean. So near these water bodies, the areas of the land are known as wetland areas. So there were dense forests. कब? 300 million years ago. So due to some natural processes, due to some natural calamities, what happened? These dense forests got buried, दब गए. B-U-R-Y, बरी मतलब गाड़ देना, दब जाना, buried मतलब दब गए. They got buried underground, दब गए due to those
डिफरेंट नेचुरल प्रोसेस, जिसमें एक प्रोसेस के नाम अगर हम बात करें दैट इज फ्लडिंग, FLOODING, फ्लडिंग मतलब पानी ज्यादा भर गया, सो दे ऑल दीज प्लांट्स गोट बरीड। अब उसके बाद में क्या हुआ, जब वो प्लांट्स गिर गए, डेंस फॉरेस्ट वाले प्लांट्स गिर गए, तो उनके ऊपर क्या हुआ, द सॉइल डिपोजिटेड ऑन दैम, उनके ऊपर मिट्टी जमा होती गई। एज द टाइम इंक्रीज्ड, टाइम जैसे जैसे गुजरा, द सॉइल लेयर्स केम ओवर मोर एंड मोर एंड मोर। तो इससे क्या हुआ, प्रेशर बढ़ता गया उन प्लांट्स के ऊपर, वो डेड प्लांट्स के ऊपर सॉइल का प्रेशर बढ़ता गया। दे गोट कंप्रेस्ड हो गए वो, तो मतलब हाई प्रेशर। अब जैसे जैसे उनके ऊपर सॉइल का प्रेशर बढ़ता गया, द प्लांट्स गोट डीपर एंड डीपर इन द सॉइल, तो क्या हुआ, टेम्परेचर भी बढ़ा। तो जब प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, यू नो दैट। तो इंक्रीज्ड टेम्परेचर, सेकंड सिचुएशन। और थर्ड सिचुएशन, as they went deeper and deeper, so there was very less chances of oxygen or air, you can say, so very less or no air or absence of air. So these were the third condition, increased pressure, increased temperature, and third absence of air. तो इन तीनों सिचुएशन के कारण मिलियंस ईयर्स के बाद में those dead plants, that dead vegetation, those converted, transformed, रूप बदल गया उनका into coal, वो कोयले में बदल गए। तो you can see this picture, इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, इसमें शुरुआत में डिफरेंट टाइप का एक नाम लिखा पीट, फिर इसके बाद में लिखा उसमें सेकंड वाला लिग्नाइट, फिर अर्ली बिटुमिनस, फिर बिटुमिनस, और लास्ट में anthracite. Actually there are different forms of formation of the coal, but ultimately the anthracite is formed, and anthracite is the best quality of coal. coal की अलग अलग क्वालिटी होती है, तो बेस्ट क्वालिटी इज anthracite. Now हमने अभी बात की कोल बन गया इस तरह से। अब ये कोल जो है, एक्चुअली कोल की जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम पार्ट ऑफ द कोल इज कार्बन, उसमें बाकी दूसरे एलिमेंट्स के ट्रेसेस भी होते हैं, जस्ट लाइक नाइट्रोजन, जस्ट लाइक हाइड्रोजन, जस्ट लाइक ऑक्सीजन, जस्ट लाइक सल्फर, बट दे आर वेरी ट्रेसेस, बहुत कम होते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या होता है उसमें कार्बन होता है। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि कोयले का बनना किसका बनना हो गया, कार्बन का बनना। सो दिस स्लो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कोल, जो डेड प्लांट्स के डेथ होने के बाद में उनका फॉर्म बदल गया, वो बदल कर किस में बदल गए हैं, कोल में। तो एक्चुअली ये क्या बना, कोल बना, या फिर हम क्या बोल सकते, कार्बन बना। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बनाइजेशन। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ कोल, जिसका दूसरा नाम क्या है, कार्बनाइजेशन। सो कोयले की कहानी तो हमने सुन ली, कहानी जान ली कि बनता कैसे है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कोल, देन इट्स प्रोडक्ट्स, कि उससे और भी कुछ बनता है क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कोल। कोल इज एज हार्ड एज स्टोन, पत्थर जैसा हार्ड होता है, यू कैन सी इन द पिक्चर, बिल्कुल पत्थर जैसा। ब्लैक इन कलर में ब्लैक होता है। और इसके यूज क्या होता है, ये तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई ना, यूज क्या क्या काम आता है, कुकिंग फूड कुक करने में, रेलवे इंजिन टू प्रोड्यूस स्टीम, वो आपको शोले मूवी का याद होगा ना, इंजन जहाँ पे वीरू और अजय वहां पे कोल डालते हैं उस इंजन में, वो कोयला डालते हैं, तो दैट इज फॉर स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन में स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए हीट चाहिए होती है, वो हीट किससे वहां पे ली जाती थी पहले। आज तो स्टीम इंजन का इंजन कुछ हेरिटेज ट्रेन में किया जाता है, सो उसके लिए रेलवे इंजन में कोल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, थर्मल पावर प्लांट्स में टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये आज भी किया जाता है, ये तो लेटेस्ट चीज है। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में वहां पर वाटर को जब हीट किया जाता है तो उसमें काम आता है कोल, हीट के फ्यूल के फॉर्म में, एंड फ्यूल इन मेनी अदर इंडस्ट्रीज। इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज जहां पर फ्यूल के फॉर्म में कोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो कोल की बात, यहाँ तक इसकी बात खत्म नहीं होती है। एक्चुअली दिस कोल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट सब्सटेंसेज, और वो 3 सब्सटेंसेज उनकी हम बात करेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ कोल।
तो जब कोल की प्रोसेसिंग करते हैं तो उससे 3 प्रोडक्ट्स निकलते हैं। वाओ, अकेला कोल ही काफी नहीं है, उससे 3 अलग अलग चीजें बनती हैं और तीनों के अलग अलग वेरियस यूजेस प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो दीज 3 प्रोडक्ट्स ऑफ कोल आर कोक। दिस इज नॉट द कोक यू ड्रिंक एज अ सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक नहीं है ये। दिस इज कोक, द प्रोडक्ट ऑफ कोल। सेकेंड इज कोल तार, थर्ड इज कोल गैस। तो कोल के 3 प्रोडक्ट्स हैं देखिए, पहला कोक वो सॉलिड फॉर्म में होता है, सेकंड कोल तार वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड, एंड थर्ड कोल गैस दैट इज इन गैसियस फॉर्म। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दीज 3 वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कॉक। सो कॉक की प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज क्या है उसकी? फर्स्ट, टफ, मजबूत, पोरस, पोर का मतलब उसमें पोर्स होते हैं, PORES। हमने पोर्स के बारे में क्लास 7th में बात की थी, टाइनी पोर्स इन द लीव्स, स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा जैसे तो नहीं, उससे बड़े पोर्स होते हैं, तो इसमें छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं। सो दिस इज पोरस। ये पोरस क्यों होता है? क्योंकि इसमें पॉल्यूटिंग गैसेस, जब इसका एक्सट्रैक्शन इसको बनाया जाता है तो उसमें गैसेस निकल जाती हैं बाहर, इसलिए वो पोरस हो जाता है। ब्लैक, कलर भी ब्लैक है, एंड ऑलमोस्ट प्योर कार्बन। कार्बन का ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है, कितना? 98% इसमें कार्बन होता है, बाकी 2% ये अदर मटेरियल्स होते हैं। तो 2% के अलावा सब कुछ कार्बन। इसका मतलब ये बहुत अच्छा कोयले का, हीट फ्यूल का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसके यूज क्या होते हैं देखिए, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील का निर्माण करने में, स्टील बनाने में। एक्चुअली स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, तो वहां पर काम आता है ये फ्यूल के फॉर्म में कोक। सेकेंड, एक्सट्रैक्शन ऑफ अदर मेटल्स, बहुत सारी दूसरी मेटल्स का भी एक्सट्रैक्शन में काम आता है। एक्सट्रैक्शन यू विल स्टडी इन क्लास 10th। अलग अलग मेटल्स के एक्सट्रैक्शन करने के लिए द impurities has to be removed. For that purification, for the removal of those impurities, the oxides, the sulfides, so there the process of purification needs fuel, and this coke is a very good fuel for that process in different types of furnaces। अलग अलग भट्टियों में जब गर्म किया जाता है उन ओर्स को, तो वहां पर ये काम आता है एज ए फ्यूल। नेक्स्ट, द लिक्विड फ्यूल दैट इज कोल तार। कोल तार, पॉसिबली यू नो अबाउट द नेम डामर। सो दैट कोल तार प्रॉपर्टीज की बात करें, ब्लैक, थिक लिक्विड, ये लिक्विड है और वो भी थिक है। थिक का मतलब जो विस्कस है, जैसे अब यू हैव सीन हनी। सो इन हनी एंड वाटर व्हाट इज द डिफरेंस? हनी इज थिक एंड वाटर इज थिन। सो इन द सेम फैशन दिस कोल तार इज ऑल्सो थिक, दिस इज थिक, विस्कस है, वो स्लोली मूव करता है, उसके पार्टिकल्स उसको आगे बढ़ने को खुद ही अपोज करते, विरोध करते, ऐसा लगता है कि उसके खुद ही पार्टिकल्स को रोकने की कोशिश करे, आगे ना बढ़, रुक जा। तो थिक लिक्विड है। नेक्स्ट, अनप्लीजेंट स्मेल, और उसकी स्मेल बड़ी अनप्लीजेंट होती है, अच्छी नहीं होती है। तो यूज क्या होते हैं इसके? यूजेस, फर्स्ट, मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 मोर देन 200 प्रोडक्ट्स इसके अंदर मिक्सचर होता है। वो इतने सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर होते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, उनका क्या क्या यूज हो सकता है? देखिए, डाइज, सिंथेटिक डाई बनाई जाती है, कलर्स, ड्रग्स, बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती हैं, एक्सप्लोजिव्स, बहुत सारे विस्फोटक पदार्थ, परफ्यूम्स। यहाँ हमने बात की अनप्लीजेंट स्मेल है, स्मेल अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ से बनाई जाती है परफ्यूम्स जिनकी बहुत अच्छी सी स्मेल आती है। वो बोले जस्ट अपोजिट थिंग्स। प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं बहुत सारे, हमने बात की थर्मो प्लास्टिक्स के बारे में, सिंथेटिक फाइबर में बात की थी, सॉरी। पेन, पेंट्स, डिफरेंट टाइप्स के पेंट्स वॉल पे किए जाने के लिए, रूफिंग, रूफिंग मटेरियल छत पे काम करने के लिए, रोड सरफेसिंग, रोड बनाने के लिए, नैफ्थलीन बॉल्स, नैफ्थलीन बॉल्स आपने सामने देखी होगी अपने कपड़ों में डालने के लिए, व्हाइट कलर की बॉल्स के फॉर्म में इनके यूज किया जाता है इन आवर क्लोथ्स, इन आवर अलमीराज। सो द क्लोथ्स आर देयर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मोथ्स, मोथ रेपेलेंट, मोथ रेपेलेंट, मोथ को रिपेल करने में काम आती है नैफ्थलीन बॉल्स। सो दीज नैफ्थलीन बॉल्स आर आल्सो मेड फ्रॉम दिस कोल तार। वाओ। नाउ द थर्ड प्रोडक्ट ऑफ कोल दैट इज कोल गैस, जो कि गैसियस फॉर्म में है। सो प्रॉपर्टीज की बात करें, फर्स्ट, ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग कोल टू कोक प्रोसेसिंग। जब कोल से कोक बनाया जा रहा होता है, मतलब कोल की प्रोसेसिंग जब हो रही होती है, तब जो गैस निकलती है, इवॉल्व होती है, इवोल्यूशन इस गैस का होता है, दैट गैस इज कोल गैस। मतलब एक तरह का बाई प्रोडक्ट है, ये कोक बनने का एक बाई प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो मतलब मैन प्रोडक्ट, बनाया कौन जा रहा था? कोक बनाया जा रहा था, लेकिन उसके दौरान ही कौन निकल आई? गैस। सो दैट इज ए बाई प्रोडक्ट, बाई का मतलब BY, बाई प्रोडक्ट। सो सेकंड इज गैसियस फ्यूल, गैस के फॉर्म में है। नाउ यूज, इसके क्या क्या यूज होते हैं? सो अस्टोनिशिंगली, आश्चर्यजनक रूप से,
द यूजेस इन द पास्ट इन 1810, इसका यूज लंदन में, इन 1820 इन न्यूयॉर्क में, इन बड़े सिटीज में इट वाज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, लाइट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। वाओ, बट राइट नाउ इट इज एज सोर्स ऑफ हीट इन मेनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल आज किस फॉर्म में होता है, हीट के, लाइट के लिए नहीं होता। वाओ, सो दैट वाज अबाउट द 3 प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड। पेट्रोल पंप आपने देखा सबने, पेट्रोल पंप यू हैव विजिटेड, या तो आप अपनी खुद की गाड़ी के लिए, और फॉर द बस यू आर सिटिंग इन। सो व्हाई द पेट्रोल पंप इज नोन एज ओनली पेट्रोल पंप? बिकॉज अगर आप बस में बैठे थे तो बस वाले ने डीजल लिया होगा, ना कि पेट्रोल। सो पेट्रोल पंप पे तो पेट्रोल इज अवेलेबल, डीजल इज ऑल्सो अवेलेबल, देन व्हाई ओनली दिस इज नोन एज पेट्रोल पंप? क्वेश्चन है ना। ओके, so you will get the answer right now. Actually, petrol and diesel, both these are obtained from one crude oil, petroleum named crude oil, जिसका नाम पेट्रोलियम है, उस कच्चे तेल से, उस पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। सो पेट्रोलियम का शॉर्ट में नाम करके पेट्रोल पंप रख दिया गया है। इसका मतलब ये, वो पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी मिलता है और डीजल भी मिलता है। कुछ कंट्रीज में इसका नाम गैसोलीन पंप है, कुछ जगहों पे इसका नाम ब्राउजर पंप भी होता है, कुछ जगहों पे इसका नाम फ्यूल स्टेशन भी रखा होता है, या फिलिंग स्टेशन तो आपने कहीं देखा होगा। सो पेट्रोल पंप से हमें कंफ्यूज ये नहीं होना कि ओनली पेट्रोल अवेलेबल होगा, वहां पे पेट्रोलियम के दोनों तो मेन प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल भी और डीजल भी दोनों मिलेंगे। इसका मतलब पेट्रोलियम से बनते दोनों। ओके, तो पेट्रोलियम से पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी बनता है। पेट्रोल जो है एक्चुअली द फ्यूल दैट इज यूज फॉर LMV। LMV मीन्स लाइट मोटर व्हीकल्स, जो हल्के वाहन है, जैसे कि बाइक, जैसे कि स्कूटी, जैसे कि स्कूटर, जैसे कि कुछ कार्स। सभी कारों में पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं होता। दूसरी बात करें हम डीजल के बारे में, सो डीजल इज यूज फॉर HMV, हैवी मोटर व्हीकल्स। तो हैवी मोटर व्हीकल्स कौन से होते हैं? कुछ कार्स होती हैं, बाकी हम बसेस की बात करें, ट्रक्स की बात करें, ट्रैक्टर्स की बात करें, रेलवे इंजन्स की बात करें, सो दोज आर हैवी मोटर व्हीकल्स, उनमें डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। सो वी विल टॉक अबाउट द पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम जो हमने पहले बात की थी स्टोरी ऑफ कोल, कार्बनाइजेशन के बारे में, तो अब हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम कैसे बना होगा। कोयले के बनने के बारे में जान लिया हमने, और पेट्रोलियम कैसे बना होगा इसके बारे में बात करते हैं। सो पेट्रोलियम, इसकी कहानी भी शुरुआत होती है मिलियंस ईयर्स अगो, लेकिन इसकी कहानी शुरुआत वहां नहीं होती जहां से हमने बात की कोल की। कोल की हमने बात की थी लो लाइंग एरियाज इन द डेंस फॉरेस्ट वर देयर, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर बॉडीज, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर बॉडीज, आइदर सीज और द ओशंस। तो सीज एंड ओशंस की बात करते हैं। In the seas and ocean, a lot of animals are there, a lot of creatures are there, बहुत सारे जीव होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। सो एक्वेटिक एनिमल्स जब उनकी लाइफ स्पेन कंप्लीट होती है, देन दे आर डेड। आफ्टर देयर डेथ, उनकी डेथ के बाद में दे गोट सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द सी बेड या ओशन बेड, वट एवर द बेड इज देयर, बिस्तर, BED, वो ओशन का या सी का बेड है। दे गेट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ दैट वाटर बॉडी। देन व्हाट हैपेंस ऑन द बॉडीज ऑफ दोज, ऑन द डेड बॉडीज ऑफ दोज एनिमल्स, दोज क्रिएचर्स, सैंड, क्ले, इनकी लेयर्स डिपॉजिट होती रहती हैं। सो आफ्टर सेवरल ईयर्स, कई सालों के बाद में, एक्चुअली द सोइल एंड क्ले continues to deposit on the bodies of those animals, dead bodies of those animals. So due to that what happens, the pressure increases, soil और clay के कारण pressure increase होता है। तो pressure increase हो गया, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, प्रेशर बढ़ा तो सेकंड कंडीशन क्या होती है? वही वाली कोल की फॉर्मेशन में जो सेकंड कंडीशन थी, दैट वाज आल्सो द सेम कंडीशन। व्हाट वाज दैट? दैट वाज इंक्रीज्ड टेम्परेचर। एंड द थर्ड वन, एब्सेंस ऑफ एयर। तो तीनों वही कंडीशंस, लेकिन सिचुएशन डिफरेंट हो गई है। वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ सी बेड और वाटर बॉडीज की बात कर रहे हैं।
हमने जब कोल के बारे में बात की थी तो हमने बात की थी डेंस फॉरेस्ट के बारे में, इन द लो लाइंग एरियाज, वेटलैंड एरियाज, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर बॉडीज कंप्लीटली। तो यहाँ पर इनकी बॉडी भी 3 कंडीशंस के कारण, इन एक्वेटिक एनिमल्स की बॉडीज, डेड बॉडी 3 कंडीशन के कारण मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई इन व्हाट, 2 चीजों में ट्रांसफॉर्म हुई। जैसे हमने बात की थी कोल के बारे में, तो कोयला एक ऑब्जेक्ट बना था, एक मटेरियल बना था, एक रिसोर्स बना था। बट राइट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सी बेड एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, तो यहां पर एक्चुअली द बॉडीज कन्वर्टेड इनटू 2 फॉर्म्स, 2 तरह की फ्यूल बने, 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। द फर्स्ट वन इज पेट्रोलियम, जिसकी भी बात कर रहे हैं, द सेकंड वन इज नेचुरल गैस। सो 2 रिसोर्सेज are made by the transformation of aquatic animals dead bodies। तो 2 तरह के हमें मिल गए। Now see the picture here, you can see different layers of these natural resources। So now you can see that 3 layers here, the water is there, the second petroleum is there, and third one is natural gas, and you can see the layers of those. The topmost layer is of natural gas, the middle layer is of petroleum, and the bottom layer is of water। Can you tell me why the sequence is this? क्या ये चेंज भी हो सकता है क्या, कि ऐसे ही रहेगा? Yes, you are right। On the basis of your knowledge of class 6th science, you can understand the things that ये तीनों मिक्स नहीं होते, these 3 आर नॉट मिक्स्ड, बिकॉज इनमें जो नेचुरल गैस की हम बात करें, द टॉप मोस्ट, दैट इज लाइटेस्ट इन दीज 3, इन तीनों में वो लाइटेस्ट है, सबसे हल्की है, सो दैट इज ऑन द टॉप लेयर। इन द मिडिल द वाटर इज द ऑयल इज देयर, पेट्रोलियम इज देयर, सो पेट्रोलियम इज लाइटर देन water, but it is heavier than gas, so it is in the middle part, and the bottom part the water is there, the water is heaviest in these 3, इन तीनों में से सबसे ज्यादा भारी कौन, heaviest कौन, water, so water is the at the bottom of the 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पेट्रोलियम निकलेगा उसके ऊपर की तरफ वो निकलेगी नेचुरल गैस। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम। कोयले की स्टोरी पढ़ी हमने पहले, देन वी टॉक्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम की स्टोरी हमने पढ़ ली, क्रूड ऑयल, हाउ इट फॉर्म्ड मिलियंस ईयर्स अगो। नाउ कैसे इसका ड्रिलिंग स्टार्ट हुई, इसके बारे में हम बात करेंगे। ड्रिल करके इसको निकाले जाने की शुरुआत कब से हुई, तो इट स्टार्टेड इन 1859। वाओ, इट इज सो लॉन्ग अवे। फर्स्ट ऑयल वेल, तो पहला वेल, कुआं ऑयल का मतलब यहाँ पे कोई हम प्लांट्स के ऑयल की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं। सो इट वाज फर्स्ट ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया, वन स्टेट इज देयर इन यूएसए, इन 1859। ओके, एंड इन इंडिया में 1867, आफ्टर जस्ट 8 years लेटर, 8 years बाद में ही इंडिया में भी पहला कुआं खोदा जा चुका था। इन असम, one place is there, Makum, in Assam is the state, you know, in the northeast states। So first oil well in India, it was in Makum, Assam, in 1867, it was drilled in 1867। और उसके बाद a lot of reserves are there in India, they were discovered, पता लगा उनका। At present right now इंडिया में कहाँ इंडिया में ऑयल के रिजर्व्स हैं। ये ऑयल कौन सा, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल इन इंडिया। So the largest reserve of that is in western offshore। western offshore का मतलब इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, वहां की अगर बात करें हम, राजस्थान के लेफ्ट से लेकर वहां से गुजरात, फिर मुंबई, महाराष्ट्र, तो ये वाला जो एरिया है ये वेस्टर्न ऑफशोर है। तो शोर की बात करें तो शोर राजस्थान में तो है नहीं, इट इज इन गुजरात, एंड फिर महाराष्ट्र की बात करें तो यहां से लेकर ये ऑफशोर है। और खास तौर से यहां बात करें 2 प्लेसेस हैं, मुंबई हाई इज वन प्लेस इन द अरेबियन सी आप मैप पे देख सकते हैं। तो वहां से अरेबियन सी से वहां मुंबई हाई, वहां से ये कहाँ है, सी के अंदर एक स्पेस है। और हमने बात की कि जो पेट्रोलियम है उसका जो ओरिजिन था, बना कैसे, स्टोरी ऑफ द पेट्रोलियम, उसके बारे में हमने बात की थी, इट स्टार्टेड इन सी। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट, आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो मुंबई हाई, वहां
and Krishna Godavari basin. Krishna Godavari are two rivers which originate in Maharashtra. दोनों की दोनों महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती हैं. आपको पता हो डेफिनेटली दैट गोदावरी this is the second largest river of India and Krishna fourth largest river of India. ओके तो ये दोनों रिवर्स ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र में. तो वहां से इन दोनों का बेसिन का मतलब इनके वाटर का जो स्ट्रेच है जो फैला हुआ है यहाँ से निकलकर वो आपको पता है ये लास्ट में कहाँ गिरती हैं. इनका डेल्टा कहाँ है? इनका डेल्टा बनता है इन बे ऑफ बंगाल. तो ये पूरा इसका जो बेसिन है तो ये पूरा बेसिन और मुंबई हाई तो ये पूरा एरिया वेस्टर्न ऑफशोर वाला यहाँ से स्टार्ट करके तो दिस इज द लार्जेस्ट सोर्स रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया. द सेकेंड इज इन असम जहां से शुरुआत हुई थी हमारे इंडिया में एंड थर्ड इज गुजरात. ओके सो वास्ट रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया आल्सो बट स्टिल दैट इज नॉट टू द रिक्वायरमेंट. जितना हमें चाहिए डिमांड इज मोर देन द अवेलेबिलिटी. सो वी हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज. हमें दूसरे कंट्री से इसको इंपोर्ट करना पड़ता है. Okay, now we will talk about the properties. Just like coal, we are talking about the properties of petroleum or crude oil. तो क्या है इसकी property? तो first one is dark. The color is dark. Second is oily liquid. Oil जैसा sticky. Liquid होता है oil जैसा. Water जैसा नहीं. Water sticky नहीं होता है लेकिन oil sticky होता है चिपचिपा. So oily liquid. Third, unpleasant odor. Odor और smell. इसकी ऑडोर इसकी स्मेल कैसी है? अनप्लीजेंट, अच्छी नहीं है. जैसे हमने बात की कोलतार के बारे में. देन मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स. जैसे हमने बात की कोलतार हैज मोर देन 200 सब्सटेंसेस या बाई प्रोडक्ट्स. उसी तरह से इसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स 200 तो नहीं होते हैं लेकिन काफी सारे इसमें भी होते हैं. मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं. कुछ एग्जाम्पल देखिए, पेट्रोल, डीजल बहुत ज्यादा फेमस है ना इनके नाम. पेट्रोलियम गैस, पीजी आपने नाम सुना है? आपने एलपीजी नाम सुना है. तो ये पीजी जो गैस है पेट्रोलियम गैस ये बनती किससे? पेट्रोलियम से बनती है. और इसी को लिक्विफाइड फॉर्म में गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में इसको सप्लाई किया जाता है तो उसका नाम होता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. एंड पैराफिन वैक्स जैसे कि कैंडल बनती है. वाओ, कैंडल बनती है. कलर देखिए कैसा है. और हमने इसकी बात की ओरिजिनल कलर कैसा है इसका, डार्क कलर. तो कितना कंट्रास्टिंग चीज है ना. नेक्स्ट, लुब्रिकेटिंग ऑयल. लुब्रिकेटिंग ऑयल इज यूज्ड फॉर द लुब्रिकेशन इन द पार्ट्स ऑफ द मशीन टूल्स. तो वहां पर लुब्रिकेशन हो जैसे कि वो मशीन के पार्ट्स हैं वो वियर आउट ना हो. बिटुमिन, ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, रोड सर्फेसिंग के लिए काम आता है. पहले इन ओल्ड डेज व्हाट वाज यूज्ड फॉर द रोड सर्फेसिंग पर्पसेस? इट वाज कोलतार. बट नाउअडेज बिटुमिन. कोलतार की बात हमने की थी. इट वाज द प्रोडक्ट ऑफ कोल बट बिटुमिन दिस द प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल नाउअडेज किया जाता है फॉर द रोड सरफेसिंग. नाउ मेथड, ये जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हमने बात की पेट्रोलियम की, जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है पेट्रोल डीजल एटसेट्रा, तो ये बनाए कैसे जाते हैं? तो इसके लिए जो मेथड है दैट इज रिफाइनिंग. रिफाइनिंग की जाती है. तो मेथड का नाम है, उसका रियल नाम क्या है, केमिकल नेम है, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो वर्ड है फ्रैक्शनल, उसमें देखिए पार्ट है फ्रैक्शन. फ्रैक्शन का मतलब पार्ट, टुकड़ा. डिस्टिलेशन का मतलब हम जानते हैं क्लास हमने 7th में और 6th में पढ़ा था, डिस्टिलेशन ऑफ वाटर. डिस्टिल्ड वाटर जो बैटरीज में डाला जाता है और केमिस्ट लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है. तो डिस्टिल्ड वाटर बनाते कैसे हैं? पहले नॉर्मल वाटर को बॉईल करते हैं, उसकी जो वेपर बनती है उस वेपर को कूल डाउन कर लेते हैं. तो उसमें जो सॉल्ट या डिजोल्व जो भी सॉल्ट्स होते हैं वो फर्स्ट वाले पोर्ट में जाते हैं और सेकंड वाले पोर्ट में क्या आता है? ओनली वाटर. वो वाटर कैसा होता है? डिस्टिल्ड वाटर. इट हैज नो डिजोल्व सॉल्ट्स एटसेट्रा, एनीथिंग उसमें भी नहीं होता है. तो वो डिस्टिल्ड वाटर है. लेकिन इसमें क्या करते हैं? इसमें बॉईल करते हैं. लेकिन इसमें केवल एक चीज नहीं है, सॉल्ट्स के अलावा उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. हमने बात की बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. तो डिस्टिलेशन तो है लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अलग अलग पार्ट्स हैं उनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है. तो पानी उसमें तो केवल जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर तो एक ही लिक्विड है उसके अंदर, तो वो बॉईल हो जाता है, निकल जाता है. लेकिन इसमें पेट्रोलियम में बहुत सारे लिक्विड्स हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. तो उनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, उबलने का पॉइंट. जिस टेम्परेचर पे यानी लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, बॉइल स्टार्ट होता है बॉइलिंग होना, तो वो पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है.
तो इनमें अलग अलग जो लिक्विड्स हैं उनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, तो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे अलग उनकी वेपर बनती है और वो बॉयल होने के बाद में ऊपर जाता है। इसका मतलब अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग होंगे, इसलिए इसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यू कैन सी द फ्रैक्शनल कॉलम देयर, डायग्राम में देखिए तो अलग अलग फ्रैक्शंस बनते हैं डिस्टिलेशन की प्रोसेस में। ये कहाँ रिफाइनिंग की प्रोसेस या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस होती कहाँ है? तो दैट इज पेट्रोलियम रिफाइनरी। एक रिफाइनरी मल्टीपल होगी तो प्लूरल होगा तो रिफाइनरीज। तो इन रिफाइनरीज में रिफाइनिंग का काम होता है या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का काम होता है। और ये जो सारे प्रोडक्ट्स जो पेट्रोलियम से बनते हैं इनका एक स्पेशल नाम है जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में बात की थी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंथेटिक फाइबर्स। सो दिस इज द वर्ड पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स, द फर्स्ट पार्ट इज पेट्रो, सेकंड पार्ट इज केमिकल्स। क्यों ऐसा? बिकॉज ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम्स, बिकॉज दीज आर केमिकल्स, तो सो द नेम इज पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोलियम से बनने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स या प्रोडक्ट्स, so that is petrochemicals. So the substances obtained from petroleum, पेट्रोलियम से जो सब्सटेंसेस मिले उनका नाम है आर नोन एज पेट्रोकेमिकल्स। इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है वर्ड। अब इसके यूजेस क्या क्या है? यूजेस तो बहुत सारे हैं, इतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनके यूज भी अलग अलग होते हैं। तो कुछ यूजेस उनके डिटर्जेंट पाउडर, ओह वाओ, केमिकल होता है ना वो, तो वो भी किससे बनता है? पेट्रोलियम से। सिंथेटिक फाइबर्स, इसकी बात हम चैप्टर नंबर 3 में भी कर चुके हैं। तो पॉलिएस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक एटसेट्रा जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, दीज आर द सिंथेटिक फाइबर्स। मोर बहुत सारे, तो उनकी जो शुरुआत होती है, सो द इनिशियल जो उनका जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है दैट इज पेट्रोलियम। देन पॉलीथीन, पॉलीथीन की बात है, केमिकल होता है। नाउ इतने सारे इसके यूजेस है पेट्रोलियम के, सो दिस इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। गोल्ड कॉस्टली होता है और बहुत ज्यादा इसकी डिमांड भी कितनी सारी है। तो दुनिया में इस वक्त ज्यादा डिमांड गोल्ड के मुकाबले ज्यादा किसकी डिमांड है? पेट्रोल और डीजल की, क्योंकि ये तो डेली लाइफ में काम नहीं आता है, लेकिन ये तो डेली लाइफ में काम आता है। हो सकता है कुछ लोग इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या ज्वेलरी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो सेल करते हैं, बट लेकिन जो डेली काम में आता है वो ब्लैक गोल्ड, ये पेट्रोलियम। तो इसको ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं? बिकॉज ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल यूज, कमर्शियली ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए इट इज यूज टू मच, सो दैट इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। दैट वाज ऑल अबाउट द पेट्रोलियम। So in this table we will talk about some constituents of petroleum and their uses. कुछ constituents और उनके uses क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें LPG, पेट्रोलियम गैस का दूसरा नाम क्या हुआ? LPG। क्यों? L फॉर यहाँ पर क्या है? लिक्विड या लिक्विफाइड। लिक्विफाइड भी इसका नाम होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मतलब पेट्रोलियम गैस जो है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है जिससे कि उसको सप्लाई किया जा सके। उसके बाद में इसका नाम हो गया LPG, जो आपके घरों में भी इस्तेमाल की जाती है। यूज फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट नंबर 2 दैट इज पेट्रोल। सो पेट्रोल मोटर फ्यूल हमने बात की थी, LMV के लिए इस्तेमाल होता है। देन एविएशन फ्यूल, एविएशन का मतलब है उड़ान से मतलब है, गैसोलीन भी बोलते हैं, और एरोप्लेन्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि लाइट मोटर व्हीकल के लिए होता है, हल्का होता है इसलिए। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग अगर आपने अपने कपड़ों की कभी करवाई है, सो दे ऑल्सो यूज पेट्रोल फॉर द क्लीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स। नाउ नेक्स्ट केरोसिन। केरोसिन एक्चुअली इट इज ऑल्सो यूज फॉर द फ्यूल। डीजल, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। HMV के लिए इस्तेमाल करते हैं डीजल, बात कर चुके हैं हम। इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं डीजल। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मशीन्स के जो टूल्स होते हैं, बिटवीन दोज टूल्स लुब्रिकेशन इज मस्ट, अदरवाइज द टूल्स द पार्ट्स विल बी वोर्न आउट, घिस जाएंगे। नेक्स्ट इज पैराफिन वैक्स, जो कि रेजिड्यू के रूप में मिलता है लास्ट में नीचे की तरफ जब रिफाइनिंग होती है, तो रेजिड्यू के रूप में बिटुमिन के साथ ये भी मिलता है पैराफिन वैक्स। सो दिस इज यूज फॉर ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन एटसेट्रा। ऑइंटमेंट का मतलब क्रीम वगैरह जो बनाई जाती है, मलहम वगैरह। कैंडल जानते हैं, वैसलीन, पेट्रोलियम जेली। एंड द लास्ट वन इज बिटुमिन। हमने बात की थी इन द केस ऑफ कोल टार, द प्रोडक्ट ऑफ कोल विच इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ द सरफेसिंग ऑफ द रोड, बट एक्चुअली दैट इज नॉट नाउ इट इज यूज
Nowadays, this bitumen, which is the petroleum product, petroleum constituent, that is used for the surfacing of the roads, and also it is used for paints. So paints and road surfacing. So these are some constituents of petroleum and their uses we just now talked about. So third natural resource that is exhaustible, जिसकी हम इस चैप्टर में बात कर रहे थे. तो थर्ड दैट इज नेचुरल गैस. तो उसके बारे में बात करते हैं, नेचुरल गैस के बारे में. सो नेचुरल गैस obtained from just above the crude oil. हमने जब बात की थी कि तेल के कुएं खोदे जाते हैं, तो हमने तीनों वाटर, पेट्रोलियम एंड उसके ऊपर बात की थी हम लोगों ने किसके बारे में, गैस के बारे में. तो ये जस्ट अबव द क्रूड ऑयल, उस ऑयल के भी ऊपर. क्यों? बिकॉज दैट इज लाइटेस्ट इन दीज थ्री, वाटर, ऑयल एंड गैस में सबसे लाइट कौन? दैट गैस. तो ये वहां मिलती है. फॉसिल फ्यूल है, ये भी एक फॉसिल फ्यूल है क्योंकि इसे फॉसिलाइजेशन के थ्रू बनी है. किसका फॉसिलाइजेशन? लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स का. गुड. इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइन. उसको पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना भी बड़ा इजी होता है, तो ट्रांसपोर्ट भी कर दिया जाता है. स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. और जब इसको स्टोर किया जाता है, एक जगह पे रखा जाता है, तो हाई प्रेशर से इकट्ठा करके रखते हैं. तो हाई प्रेशर जब अप्लाई करेंगे, गैस के ऊपर, क्योंकि ये तो गैस है, गैस में हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसकी फॉर्म उसकी स्टेट बदल जाती है. द स्टेट चेंजेस फ्रॉम गैस टू लिक्विड. तो लिक्विड फॉर्म में आती है प्रेशर अप्लाई करने के कारण. इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा गैस को कम जगह में इकट्ठा करके रखा जा सकता है. तो ये इसकी एक खास बात है. जब इसको प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है प्रेशर के कारण. तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जब उसको कंप्रेशर से कंप्रेस करके रखते हैं तो वो क्या होती है, दब जाती है. तो उसका नाम बदल जाता है. देखिए CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. शायद आपने ये वाला नाम सुना होगा, CNG. सो अब इसके यूजेस की बात करें. यूज क्या क्या होता है? फर्स्ट, पावर जनरेशन. हमने कोल के बारे में बात की थी. कोल इज यूज फॉर पावर प्लांट्स. तो उसी तरह से पावर जनरेशन के लिए पावर प्लांट्स में इस नेचुरल गैस का भी यूज किया जाता है. फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स. ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में गाड़ियों के लिए, बसों के लिए, कार्स के लिए, ऑटो रिक्शाज के लिए. शायद आपने देखा भी होगा CNG बसेस के बारे में, दिल्ली के बारे में आपने इसके बारे में सुना होगा. तो बहुत सारे और दूसरे स्टेट्स में भी आजकल CNG की बसेस चलने लगी है, CNG के ऑटो रिक्शा चलने लगे हैं. तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए क्यों करते हैं इसका इस्तेमाल? वाई द रीजन, कारण ये है, रीजन इज लेस पोल्यूटिंग फ्यूल है. ये जो फ्यूल है नेचुरल गैस, उससे पोल्यूशन काफी कम होता है. इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जब ये बर्न होता है हीट के फ्यूल के फॉर्म में, तो मोस्ट ऑफ द नेचुरल गैस इज यूज्ड और वेस्ट बहुत कम निकलता है. दूसरी जो पोल्यूटिंग गैसेस है वो बहुत कम निकलती है. इसका मतलब पोल्यूशन कम होता है. सो दिस इज ए क्लीनर फ्यूल. मतलब क्लीनर मतलब क्लीन से भी ज्यादा अच्छा, काफी ज्यादा अच्छा, ज्यादा क्लीन फ्यूल है. इसलिए इसका नाम क्या है? इको फ्रेंडली फ्यूल. इको फ्रेंडली मतलब जो हमारे एनवायरमेंट पे, हमारे इकोसिस्टम पर जो एनिमी के रूप में, दुश्मन के रूप में बुरा असर नहीं डालता, दोस्त है, हमारे एनवायरमेंट का दोस्त है, हमारे इको सिस्टम का फ्रेंड है, नुकसान नहीं पहुंचाता हमारे एनवायरमेंट को. तो इको फ्रेंडली फ्यूल या ग्रीन फ्यूल. ग्रीन फ्यूल का मतलब ये दिखने में हरा नहीं है, कलर उसका कुछ होता ही नहीं है. कलर की हमने बात की क्या प्रॉपर्टी के बारे में? ना, हमने कोई गैसेस है बस इतनी बात की है. कलर ग्रीन नहीं है, लेकिन ग्रीन का मतलब हमारी जो ग्रीन अर्थ है, हमारी ग्रीन अर्थ है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है. इसलिए इसका नाम ग्रीन फ्यूल भी है, इसको बोलते हैं. मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में भी इसका काम आता है. फर्टिलाइजर और केमिकल को बनाने में, जैसे कि एक एग्जांपल है यूरिया. यूरिया एक फर्टिलाइजर है, तो इसको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. क्यों होता है? देखिए यूरिया का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ, देखो NH2CONH2. तो ये NH2CONH2 को बनाने के लिए खास तौर से क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए और हाइड्रोजन गैस चाहिए. तो जो हाइड्रोजन गैस है एक्चुअली वो बनाने के लिए हाइड्रोजन कहां से ली जाती है? CNG से बनाई जाती है. तो CNG जो नेचुरल गैस है उससे हाइड्रोजन प्राप्त की जाती है. उस हाइड्रोजन गैस फॉर यूरिया. तो उस हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है यूरिया बनाने के लिए. फैक्ट्री में होता है, केमिकल फैक्ट्री में होता है. तो यहाँ पर यूरिया बनाने के लिए जो हाइड्रोजन गैस चाहिए थी वो किससे मिली? CNG से, नेचुरल गैस से. तो उसको यूरिया बनाने के लिए और ऐसे दूसरे और केमिकल्स बनाने के लिए भी काम आता है CNG. नेक्स्ट, सप्लाइड थ्रू पाइपलाइन. हमने पहले भी बात की कि सप्लाई कर सकते हैं पाइपलाइन के थ्रू. तो सप्लाई पाइपलाइन के थ्रू करते हैं. और ऐसी सप्लाई लाइन इंडिया में कई जगह पे बिछा दी गई है, जैसे कि वडोदरा गुजरात में एंड दिल्ली में. और ये तो मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पे ये ऐसा हो गया है. राजस्थान में भी कुछ बड़े शहरों में ऐसा हो गया है. तो इट इज ग्रेजुअली ग्रोइंग अप. नाउ अवेलेबिलिटी इंडिया. इंडिया में कहां कहां नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं?
तो हमने बात की जहां पेट्रोलियम होता है वहीं इसके रिजर्व भी होते हैं। तो देखिए त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में, राजस्थान नॉर्थ ईस्ट में से हमने बात की, असम के बारे में बात की थी ना, तो त्रिपुरा भी नॉर्थ ईस्ट में ही है। राजस्थान हमने बात की थी वेस्टर्न ऑफशोर की तरफ, वहां पर महाराष्ट्र जो जहां से शुरुआत ही होती है, हमने बात की थी वेस्टर्न ऑफशोर महाराष्ट्र से शुरुआत होती है। एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा, तो कृष्णा गोदावरी टू रिवर्स की हमने बात की थी, ओरिजिनेट कहाँ होती है दोनों रिवर्स, महाराष्ट्र में, और उनका जो डेल्टा है, डेल्टा की हमने बात की। बेसिन के बारे में हमने बात की थी, तो बेसिन होता है जो वाटर का स्ट्रेच किसी रिवर का होता है पूरा, जहां तक उसका पानी का फैलाव होता है उसको उसका बेसिन बोलते हैं। और डेल्टा क्या, जहां जाकर वो गिरती है दूसरे वाटर बॉडी के अंदर, जैसे कि ये दोनों जो रिवर्स हैं इनका डेल्टा कहाँ है, कहाँ जाके गिरती है, ये जाके गिरती है बे ऑफ बंगाल में, तो इनका डेल्टा कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में। तो वहां जो डेल्टा है वहां पर ये गैस मिलती है। वाओ, सो दीज आर द अवेलेबल इन इंडिया। लेकिन ये इतने ज्यादा तो नहीं है इंडिया में, लेकिन फिर भी जो अवेलेबिलिटी है वो काफी मात्रा में है, और इसके नए नए रिजर्व राजस्थान में, जैसे कि इसकी खुदाई चल रही है, काम चल रहा है बहुत ज्यादा। रिलायंस भी है, रिलायंस और दूसरी कंपनी एक केन्स नाम की एनर्जी है, उनको इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो वहां पर भी काफी ज्यादा इसकी खुदाई चल रही, माइनिंग हो रही है। तो दिस वाज द थर्ड नेचुरल रिसोर्स विच इज एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल है मतलब हमें कंसर्न होकर यूज करना पड़ेगा, ग्रीडी होकर इसका भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बट दिस इज गुड। गुड क्यों है, क्योंकि ये क्लीन फ्यूल है। अब एक इंटेलिजेंट सवाल फ्रॉम बूझो। बूझो का भी ब्रेन कभी कभी बहुत शार्प चलता है। सो द क्वेश्चन ही आस्क्ड टू पहेली, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने बात की डेड ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से, एक से कोल बना दूसरे से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनी, तो उसने बोला कि लेबोरेटरी में क्यों नहीं हम बना लें, साइंटिस्ट तो कुछ भी कर सकते हैं। सो व्हाट इज योर टेक। देखिए पहली इंटेलिजेंट, बहुत सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सो उसने जवाब क्या दिया, नो, देयर फॉर्मेशन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस। हमने बात की स्लो प्रोसेस, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे उसके अंदर। सो स्लो प्रोसेस है। एंड कंडीशंस, जो तीन कंडीशन की बात की, वो तीनों कंडीशन एक साथ इनके लिए क्रिएट करना लेबोरेटरी में, दैट इज नॉट पॉसिबल। फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। सो बूझो का ये जो सवाल था बहुत इंटेलिजेंट सवाल, उसका जवाब भी बहुत इंटेलिजेंट है। हो सकता है आपके भी दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आए, लेकिन इसका जवाब है नो, वी कैन नॉट डू दैट। सो इस चैप्टर में हमने 3 एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात की। अब इनमें एक प्रॉब्लम थी, शायद आप पहचान पा रहे होंगे। दैट प्रॉब्लम वाज दैट दीज आर एग्जॉस्टिबल, खत्म हो जाएंगे। सो इसका क्या सॉल्यूशन हो, इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? देखो हमने बात की थी, कुछ लोग ग्रीडी होते हैं, कुछ लोग होते हैं कंसर्न्ड। ग्रीडी मीन्स जो लालची हैं, अभी सब खत्म कर लो, यूज कर लो। कंसर्न का मतलब नहीं यार, वी हैव टू यूज जस्ट एज वी वांट, और बाकी हमें वी हैव टू लीव फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस। लेकिन ये तो लिमिटेड है, तो कुछ तो हम कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम, देन वी विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। सो द प्रॉब्लम, फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल, लिमिटेड है क्वांटिटी में, खत्म हो जाएंगे। इतने काम है कि टेक मिलियंस ऑफ, हमने बात की थी बनने के बारे में, स्टोरी ऑफ कोल, कार्बनाइजेशन एंड स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम के बारे में बात की। दीज दैट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन रूप बदलना किसका, ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू फॉसिल्स। ये जो प्रोसेस होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, कुछ ईयर्स की बात तो है नहीं। दूसरी बात, नॉन रिजर्व इन होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो इसके जो भंडार है, रिजर्व का मतलब भंडार, जहां अवेलेबल है इन द सॉइल, इन द लैंड सरफेस और इन द वाटर बॉडीज, जो इनके अवेलेबल रिसोर्सेज के रिजर्व जो हैं वो विल लास्ट इन ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स, कुछ सालों में ही खत्म हो जाएंगे, कुछ 100 सालों में खत्म हो जाएंगे। मतलब हम अपनी जनरेशन को पूरा कर पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन और उसके आगे वाली नेक्स्ट जनरेशन हो सकता है उनके पास अवेलेबल ही नहीं हो पेट्रोल डीजल। वो हिस्ट्री के बारे में पढ़ेगी, हिस्ट्री, ओह पेट्रोल सम पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज यूज्ड एज ए फ्यूल, लेकिन अब नहीं पाया जाता, ऐसा कुछ हो सकता है पढ़े वो, तो खत्म हो जाएगा इसका मतलब। थर्ड, बर्निंग, जब पेट्रोल डीजल या जो भी हमने नेचुरल रिसोर्स की बात की, हमने बात की लास्ट में नेचुरल गैस के बारे में कि उससे पॉल्यूशन कम होता है, लेकिन बाकी को जब जलाते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट्स इन मैनी पॉल्यूटिंग गैसेस, बहुत सारी
पॉल्यूशन करने वाली गैसेस निकलती हैं। कोल के बारे में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इनके बारे में बात की बाकी पेट्रोलियम से निकलने वाले पेट्रोल और डीजल के बारे में, तो इसे क्या निकलते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक्चुअली मेनली 3 ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो 3 ऑक्साइड, इसलिए हमने लिखा है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इन हायर क्लासेस यू विल स्टडी अबाउट दिस फॉर्मूला एटसेट्रा, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ऑक्साइड्स निकलते हैं। ये क्या है, पॉल्यूटिंग गैसेस जो हमारे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करती है। कौन सा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, गुड। सो इनके कारण क्या होगा, इन पॉल्यूटिंग गैसेस के कारण क्या होगा, दीज गैसेस विल बी प्रेजेंट इन द एयर। और एयर का जो कंपोजिशन है, एयर में जो गैसेस का हमने बात की क्लास 6 स्टैंडर्ड से लेकर अब तक, अलग अलग गैसेस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट, उनका परसेंटेज नाइट्रोजन इज 78% लाइक दैट। तो वो जो परसेंटेज है उसमें चेंज आता है। सो उसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो गैसेस हैं वो अपनी अर्थ का टेम्परेचर CO2 और बाकी गैसें मिलकर क्या करती हैं, अपनी अर्थ पर आने वाले रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन है, उनको ट्रैप कर लेती है, जाने नहीं देती है। तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, हमारी धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। बढ़ जाए तो क्या होगा, आइस ग्लेशियर्स विल स्टार्ट मेल्ट, पिघलना शुरू हो जाएंगे। आइस के ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो वाटर बॉडीज में वाटर का लेवल बढ़ेगा। तो इसका मतलब धरती धीरे धीरे मर्ज होती जाएगी, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। तो सॉल्यूशन क्या करें, क्या रिजल्ट है, ये प्रॉब्लम का पता लग गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कोई सॉल्यूशन है या नहीं है। सो कुछ सॉल्यूशंस है, देखिए, यूज ओनली व्हेन नीडेड एब्सोल्युटली, जब आपको जरूरत है सच में तो ही यूज कीजिए। ऐसे फालतू के मजे करने के लिए, घूमने फिरने के लिए चलो अपनी बाइक निकालते हैं, ओके नाउ विल गो फॉर द जस्ट अ राइड। तो जब जरूरत हो सच में, अगर आपको अपने एनवायरमेंट की प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन है, अगर इफ यू केयर अबाउट दैट, देन एब्सोल्युटली आपको तभी करना है जब आपको जरूरत है। तो देखिए क्या होगा उससे, बेटर एनवायरमेंट, आपका एनवायरमेंट, हमारा सबका एनवायरमेंट वो ज्यादा अच्छा होगा, ग्रीन होगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की जो रिस्क है वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि यूज तो करना पड़ेगा अपने को, लेकिन जब हम जरूरत होगी, एब्सोल्युटली नीड होगी, तभी जब इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब उतना एनवायरमेंट के को हम प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, तो रिस्क थोड़ी सी कम हो जाएगी। अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और ये जो रिसोर्सेज, जब इनका इस्तेमाल हम जब जरूरत है तभी कर रहे हैं, इसका मतलब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक बचे भी रहेंगे वो, क्योंकि हमने ग्रीडीनेस नहीं दिखाई, हमने क्या दिखाया, कंसर्न, चिंता दिखाई हमने। अब एक इंस्टीट्यूट है इंडिया में, PCRA, फुल फॉर्म देखिए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड रिसर्च एसोसिएशन। तो उसने राइडर्स के लिए या ड्राइवर्स के लिए, कार ओनर्स के लिए, बाकी दूसरे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए कुछ स्टेप्स बताए हैं। स्टेप्स हाउ टू सेव पेट्रोल और डीजल वाइल ड्राइविंग करते हैं पेट्रोल डीजल को बचाया कैसे जाए जिससे वो कम कंज्यूम हो। पेट्रोल LMV के लिए, डीजल HMV के लिए। आप फुल फॉर्म जानते हैं, मैं फिर से बता देता हूं। LMV फिर किसके लिए, लाइट मोटर व्हीकल, छोटे हल्के वाहनों के लिए। डीजल HMV हेवी मोटर व्हीकल। सो व्हाट PCRA has suggested the steps, 4 steps. First, drive at a constant and moderate speed as far as possible. जहां तक हो सके, as far as possible मतलब जहां तक हो सके क्या कीजिए, ड्राइव कीजिए अपनी गाड़ी को कांस्टेंट, मतलब एक ही स्पीड से। आप कांस्टेंटली एक ही स्पीड से, 40 की स्पीड से आपकी गाड़ी जा रही है, आप कांस्टेंटली चला सकते हैं क्या, नहीं। जितना हो सके, मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक वक्त अपनी गाड़ी चला रहे 10 की स्पीड पर, 10 किलोमीटर पर आवर, अगले सेकंड आपने, अगले मिनट आपने उसकी स्पीड बढ़ा दी, 80 कर दी, फिर आपने 100 कर दी। हाँ, हो सकता है द रोड इज नॉट ओके, अगर रोड प्रॉब्लम है, रोड की सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो हमें करना पड़ सकता है कम ज्यादा। लेकिन रोड अच्छा है, एक ही तरह का रोड है, तो आप स्पीड कोशिश कीजिए, यू ट्राई दैट द स्पीड इज कांस्टेंट, बहुत कम ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रहे हैं। एंड मॉडरेट स्पीड, और मॉडरेट स्पीड का मतलब ये कि आपकी गाड़ी की स्पीड ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी, दोनों ही केसेस में आपका इंजन है वो ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा, पेट्रोल या डीजल जो भी इंजन है वो ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो मॉडरेट स्पीड क्या होती है, अराउंड द स्पीड ऑफ 50 to 60 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड शुड बी मॉडरेट। तो इस स्पीड में आपका इंजन जो है पेट्रोल और डीजल का कंजर्वेशन करेगा, बचाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज स्विच ऑफ द इंजन, अपने गाड़ी के इंजन को बंद कर लीजिए एट ट्रैफिक लाइट, जब ट्रैफिक लाइट रेड हो जाती है उस वक्त, जो ट्रैफिक वाले सब रुक जाते हैं रेड लाइट के कारण, तो उस वक्त अपने
गाड़ी का जो इंजन उसको स्विच ऑफ कर लीजिए, तो जब तक सिग्नल हमें ग्रीन नहीं मिलेगा तब तक गाड़ी हमारी खड़ी है, तो देयर इज नो यूज ऑफ इंजन टू कीप इट स्टार्टेड। और एट ए प्लेस, और एक ऐसी जगह पे वेयर यू हैव टू वेट, जहां आपको वेट करना है किसी बंदे का, किसी कारण से आपको वेट करना है, तो वहां अपनी गाड़ी का स्विच ऑफ कर दीजिए इंजन, तो आप बचाएंगे पेट्रोल और डीजल को। नेक्स्ट, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, अपनी गाड़ी के टायर्स का जो प्रेशर है वो ठीक से चेक कीजिए, करेक्ट है कि नहीं है। कुछ समय पहले एक्चुअली गाड़ी मेरी लेकर गया था ड्राइवर एक, और उसने शायद अपने अकॉर्डिंग गाड़ी में एयर का प्रेशर, टायर में प्रेशर डलवाया था। जब मैं लेकर गया तो मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम है, व्हीकल्स जो टायर्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम। मैंने देखा कि एक तरफ का टायर वो थोड़ा सा ज्यादा दबा हुआ था, तो मैंने प्रेशर चेक करवाया, तो मैंने बोला कि शायद इसमें हवा कम है। मैंने बोला उसको, वो मैकेनिक जो था उसको बोला कि हवा कम, भैया इसका 32 कर दीजिए फ्रंट वाले में। तो दूसरे बोला कि सर ये तो 50 के आसपास है। वाह, तो ऐसा कैसा हो गया? एक्चुअली उसने क्या किया, ड्राइवर ने जो हवा डलवाई थी मेरे पहले जो लेकर गया था, उसने क्या किया, उसने अपने अकॉर्डिंग एयर ज्यादा डलवा ली, तो एक तरफ ज्यादा होगी एक तरफ कम होगी, तो वो टायर दब गया था। ओके, तो इसके कारण गाड़ी में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी ड्राइव करने में। इसका मतलब आपको गाड़ी के टायर्स का प्रेशर कंटिन्यूसली चेक करते रहना चाहिए। ओके, और उसके लिए गाड़ी में मैनुअल में मेंशन होता है कि आपकी गाड़ी के फ्रंट वाले टायर में कितना होना चाहिए, बैक वाले टायर में कितना टायर का प्रेशर होना, एयर का प्रेशर होना चाहिए। वी शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, तो आप अपनी गाड़ी को बार बार, जब उसके फिक्स टाइम्स जो होता है ना, इसके ड्यूरेशन के, इतने ड्यूरेशन के बाद में अपनी गाड़ी की सर्विस करानी है, तो वो मेंटेनेंस आपको गाड़ी का करवाते रहना चाहिए। बाहर से पॉलिश वगैरह की बात नहीं कर रही कि चमका के बाहर से रखा, लेकिन गाड़ी की इंजन की सर्विस ही नहीं करवाई, तो उसके फिल्टर वगैरह उसकी सर्विसिंग कराना बिल्कुल जरूरी है रेगुलर, जब उसका टाइम शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग। सो दैट वाज ऑल द प्रॉब्लम अबाउट दैट एंड द सिंपल सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर खत्म हो गया हमारा। नाउ वी विल हेड टू द एक्सरसाइजेस। So now we are in the exercise questions. Question number 1. एक्सरसाइज क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, दैट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स. So in this chapter we talked about the CNG and LPG both, and both we talked about that both are gases. So what are the advantages? So answer is written here for you. The advantages of using CNG and LPG as fuels are as follows. Both CNG and LPG burn easily. CNG and LPG give a lot of heat energy when burned. जब जलाया जाता है तो बहुत सारी हीट एनर्जी निकलती है, ज़्यादा हीट मिलेगी, इसका मतलब फ्यूल ज़्यादा अच्छा है. CNG and LPG कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली थ्रू पाइपलाइंस. पाइपलाइन के थ्रू इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजीली लिक्विफाइड फॉर्म के अंदर. CNG and LPG are clean fuels because they जब उनको बर्न करते हैं, so the gases they evolve, those gases are not that much polluting gases. Most of the part of the fuels are burnt, so no polluting gases or very less polluting gases are evolved. So clean fuels, and they don't release smoke and harmful gases when burnt. That was the question number 1. Question number 2. Name the petroleum product used for surfacing of roads. Now you have to check it out. The question is petroleum product, not it is coal product. अगर coal product होता तो आपका आंसर डिफरेंट होता, but the question is about the petroleum product. So that is bitumen. Bitumen is used for surfacing of roads. अगर यहाँ पर coal product लिखा होता तो आंसर आपका होता कोल तार. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें. Describe how coal is formed from dead vegetation and what is this process called. दो पार्ट से क्वेश्चन के. क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्राइब करना है स्टोरी ऑफ द कोल. So the story is here. Dense forest got buried under the soil due to natural processes millions of years ago. Then more and more soil got deposited over them. Soil जमती गई and they got compressed more. प्रेशर ज़्यादा हो गया उनके ऊपर. This led them to get exposed to very high temperature and high pressure. They slowly got converted into coal under these extreme conditions. Extreme का मतलब बहुत ज़्यादा,
हाई प्रेशर भी, हाई टेम्परेचर भी. द होल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन इज नोन एज कार्बोनाइजेशन, जिसकी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी. हियर Z की जगह पे आप S भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स पे से में आपको आंसर लिखना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉसिल फ्यूल्स आर ब्लैंक ब्लैंक एंड ब्लैंक. इसका मतलब आपसे फॉसिल फ्यूल्स पूछे गए हैं. ओके तो आप 3 कोई भी नाम लिख सकते हैं. इस चैप्टर में 3 की बात की है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड. पेट्रोलियम से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो हमने उसके बारे में 2 नाम पढ़े हैं. यू कैन राइट द बोथ देम्स. फर्स्ट वाज रिफाइनिंग एंड सेकेंड वाज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. थर्ड, लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर ए व्हीकल इज. किसी व्हीकल के लिए सबसे कम पोल्यूशन करने वाला फ्यूल कौन सा है? सो दैट इज ऑलरेडी वी टॉक्ड अबाउट CNG, compressed natural gas. Now the question 5th, tick true or false against the following statements. True कौन सा है और false कौन सा है? So the first question is this, A, B, C, D, E, 5 questions इसमें. First one, fossil fuels can be made in the laboratory. भूजन ने क्वेश्चन पूछा था ना, लेबोरेटरी में फॉसिल फ्यूल बना सकते हैं. आर यू श्योर? तो दिस इज रॉन्ग आंसर, फॉल्स, नहीं बना सकते. बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम लगता है और जो कंडीशन है सारी क्रिएट लेबोरेटरी में नहीं की जा सकती. नेक्स्ट बी, CNG इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल. पेट्रोल के मुकाबले मोर पोल्यूटिंग कौन है? CNG है. वाओ, जस्ट अपोजिट लिखा ना क्वेश्चन में. सो दिस इज अगेन फॉल्स, ये फॉल्स है. पेट्रोल की जगह पे CNG हो जाता तो ट्रू हो जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, कोक इज द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. कार्बन का ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है कोक. यस, हमने बात की 98% कोक में कार्बन ही होता है. सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. डी की बात करें, आप पहले आंसर देख लोगे. यस, नाउ कोल टार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस. बहुत सारे सब्सटेंस का मिक्सचर है. हमने बात की मोर देन 200 सब्सटेंसेस. सो दिस इज ट्रू. यस. एंड द लास्ट वन, केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल. केरोसिन फॉसिल फ्यूल नहीं है. सो दिस इज रॉन्ग आंसर. फॉसिल फ्यूल ही तो है. हमने बात की कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम है वो. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. टोटल आंसर इज दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. फॉसिल फ्यूल्स हैं वो, फॉसिल फ्यूल्स एग्जॉस्टिबल भी हैं और नेचुरल भी रिसोर्सेज है. तो एग्जॉस्टिबल क्यों है? बिकॉज दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी. और नेचुरल क्यों है? बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, वी हैव नॉट क्रिएटेड देम. So the answer goes like that. The process of formation of fossil fuels requires millions of years. Dead vegetation and plants, dead vegetation मतलब plants ही हो गया, and animals that get buried deep inside the earth, earth के नीचे दब जाते हैं, buried मतलब गड़ जाते हैं, require high temperature and pressure for the formation of fossil fuels. तो fossil fuels बनाने के लिए ये टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, प्रेशर ज़्यादा चाहिए, विच कैन नॉट बी डन इन द लेबोरेटरी. तो लेबोरेटरी में ये नहीं किया जा सकता. दस फॉसिल्स आर लिमिटेड, इसलिए लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, हम नहीं बना सकते, मैनमेड नहीं है, ये नेचुरल है. तो फॉसिल्स लिमिटेड, लाखों साल लगते हैं इनको बनने में. देयरफॉर द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एट ए रैपिड रेट विल लीड टू देयर एग्जॉशन. इसलिए अगर इसी तरह से यूज होता रहा तो वो खत्म हो जाएंगे. इसलिए वो एग्जॉस्टिबल भी है और नेचुरल भी है, दोनों कारण आ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड यूज ऑफ कोक. तो कोक की पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, उसके बाद में उसके यूज लिखने हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स, कोक इज टफ, मजबूत होता है. कोक इज पोरस, हैविंग पोर्स, छिद्र होते हैं बहुत सारे, क्योंकि गैसेस निकल जाती है उसके अंदर से. कोक इज ब्लैक इन कलर, और कलर में होता है ब्लैक. और यूज की बात करें, सो दैट इज द uses in the manufacture of steel, स्टील के मैन्युफैक्चर में काम आता है, गर्म करने में, हीट के फॉर्म में. इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, और मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में काम आता है, रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में. ये इसके साथ जो इम्प्योरिटीज होती है उनको रिड्यूस कर देता है, इसलिए मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में काम आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. कहानी बतानी है पेट्रोलियम की. सो द आंसर इज डेड ऑर्गेनिज्म दैट गॉट बरीड इन द सी millions of years ago got covered with layers of sand and clay. सैंड और क्ले से दब गए due to lack of air, anaerobic decomposition.
दूसरा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, these dead organisms go transformed into petroleum and natural gas. So this is the story of petroleum formation. Next question number 9. The following table shows the total power shortage in India. इंडिया में पावर की जो शॉर्टेज है वो दिखा रखी है टेबल के थ्रू फ्रॉम 93 to 99 years. शो द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ. तो इस डाटा को ग्राफ के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर इसको प्लॉट करना है. प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर्स इन ऑन द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे बताना आपको शॉर्टेज परसेंटेज जो इसमें लिखी हुई है, एंड द ईयर ऑन द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे लिखना है आपको ईयर. सो दिस इज द डाटा इन दिस टेबल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस इज द graph you had to create, you had to draw in your notebook. Actually you had to draw on the graph paper and paste in the fair notebook. So that is the chapter completed. So thanks for watching. Bye bye.